اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کابینہ سے اہم اور تاریخی ملاقات ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا گیا ہے۔ ISI چیف سمیت ٹرمپ انتظامی کے اہم عہدیدار بھی شریک تھے، جبکہ یہ پہلی بار کسی امریکی صدر کی کسی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے اعتماد اور اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی، انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاریخی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے تاریخی ملاقات نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کی بوکھلاہٹ بھری ویڈیو، نہ ربط تھا نہ سچائی۔ امریکہ کی پیشگی اطلاع کے باوجود بھارت کچھ نہ کر سکا۔ اب فالس فلیگ آپریشنز اور جھوٹے دعووں سے سچ نہیں چھپایا جا سکتا۔ پاکستان کا وقار دنیا کے نقشے پر مزید روشن ہو رہا ہے۔ پاکستانی سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے تاریخی ملاقات نے بھارت کی نیندیں اڑا دی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی بوکھلاہٹ عروج پر ہے۔ عزلت میں جاری ہونے والا ویڈیو بیان جس میں نہ تسلسل تھا نہ ہی سچائی۔ بھارتی دعوے ایک بار پھر فالس فلیگ شکست اور جھوٹ کا مجموعہ ثابت ہوئے۔ بھارت خود تسلیم کر رہا ہے کہ امریکہ نے پیشگی اطلاع دی تھی کہ پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھارت نے کیا کیا؟ کیا بھارت پیشگی اطلاع کے بعد بھی ہٹ دھرمی سے باز آیا؟ پاکستان کے اڈے تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ بھی بے نقاب ہوا۔ جنگ بندی کی اپیل، 26 فوجی اڈوں کو پہنچنے والا نقصان اور بھارتی ترجمانوں کے اعترافات، سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانے کا اعلان کیا تو بھارت کی جھوٹی کہانی گھڑنا، G7 کے بعد مودی کو روکنے کا خواب دکھانا، سب محض رسوا کن ثابت ہوئے۔ ایران کسی قیمت پر نہیں جھکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی امریکہ کو للکار، کہا کہ جبری جنگ بندی قبول نہیں کریں گے۔ علی خامنئی نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے حملہ کرنے کی حماقت کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلط کردہ جنگ اور امن کبھی قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ سن لے، ایران ظلم کے آگے نہیں جھکے گا اور نہ ہتھیار ڈالے گا۔ آیت اللہ خامنئی کا واضح پیغام۔ قوم سے خطاب میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل نے بڑی غلطی کی جس کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ علی خامنئی نے واضح کیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، اسے حملے کی بنیاد بنانا جائز نہیں۔ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ایرانی قوم بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے، ایرانی مسلح افواج کو حکام اور قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ امریکہ اسرائیل کی براہ راست مدد کے بارے میں سوچے بھی نہ، روس نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی براہ راست فوجی مدد فراہم نہ کرے، بلکہ اس بارے میں سوچے بھی نہ۔ روس ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیل کو دی جانے والی براہ راست فوجی مدد مشرق وسطیٰ میں صورتحال کو مزید کشیدہ اور غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں سے 5 جاسوس گرفتار، افغان شہری بھی پکڑا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے صوبے لرستان میں پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس نے 5 مبینہ جاسوس گرفتار کر لیے ہیں۔ رے شہر میں موساد سے وابستہ جاسوس افغان شہری اور انڈر گریجویٹ طالب علم ہے جس کے موبائل فون سے ڈرون اور بم بنانے کی تربیت سے متعلق فائلیں ملی ہیں۔ ایرانی بارڈرز کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک سے توقع ہے کہ وہ اپنے ممالک سے ایران کے خلاف دشمن کارروائیوں کا سدباب کریں۔ بحر ہند میں پاک بحری کا ایک اور انسان دوست کارنامہ۔ لائبیریا کے آئل ٹینکر MT ہائیلینڈ نے اپنے ایک زخمی بھارتی عملے کے طبی امداد کی درخواست کی، جس پر پاک بحریہ کے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوارڈینیشن سینٹر نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ زخمی بھارتی کارکن کو پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے ذریعے کراچی کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ کامیاب ریسکیو مشن پاک بحریہ کے انسانی دوست جذبے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی روشن مثال ہے۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान मुलाकात में बानी पीटीआई का जिक्र नहीं आएगा। सेनेटर फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान का सिपह सलार सिर्फ मुलाकातें नहीं बल्कि मुल्की मफादात के लिए और भी खुशखबरियां ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में एहतजाज से दूरी जाहिर की, जो अच्छा इकदाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, ये मुल्क की बका की बात है। तहरीक इंसाफ भी पीटीआई पाकिस्तान बन गई है। के बारे में आप लोगों सबको 2.5 महीने पहले बता दिया और ये एक जंग जीते हुए सिपह सलार कामयाबी से भरपूर है और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का फ़ख्र है। और ये महदूद से मुलाकातों को नहीं देगा। ये मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के पहले चीफ हैं जो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं अमेरिका के, और इसमें किसी किस्म का कोई डिस्कशन इमरान खान साहब से रिलेटेड नहीं आएगा ना होगा। और पाकिस्तान का जो सिपह सलार है उससे मुलाकातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और अच्छी खुशखबरियाँ भी लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको कई महीनों पहले बताया था कि जो 40 साल में नहीं हुआ अगले 40 साल के लिए होने जा रहा है। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि उसकी अनाउंसमेंट ICPR करे या गवर्नमेंट करे, और बाकी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी कर दूँगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अच्छी खबरें दबादब आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तान से खिताब की तारीफ़। फील्ड मार्शल को सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया गया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के हवाले से मालियाती इस्तेहकाम की बहाली की जानिब तारीख़ी कदम। वफ़ाक़ी काबीना ने मुल्क की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 साल में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ख़त्म करना है। स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी के 683 अरब रुपए की रीफाइनेंसिंग की जाएगी और IPPs के बकायाजात की अदायगी भी की जाएगी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नए इमरजेंसी ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया गया। डोनर के ताउन से इब्तदाई मरहले में नया ब्लॉक 70 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वज़ीर खुराक ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि नए वार्ड की तामीर से इमरजेंसी की मजमूई गुंजाइश 136 बेड्स तक पहुँच जाएगी। मरीजों के रश के पेश नज़र अलाइड अस्पताल 2 में इमरजेंसी कार्डियक सर्विस दोबारा शुरू करने के लिए भी प्लान तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान हाजी गुलबर खान से अहम मुलाकात हुई है। पोलियो के खात्मे, वैक्सीनेशन के निज़ाम को मौसर बनाने और सेहत के शोबे में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक भी इस मौके पर मौजूद थीं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान ने वफाकी ताउन को सराहते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात का चैलेंज मिलकर हल किया जाएगा। इधर सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आजमाइशी चेकअप का आगाज हो गया। अस्पताल की OPD में जदीद मशीनों से आने वाले मरीजों की इकोग्राफी, कार्डियोग्राफी और ECG की गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौज़म से। जी सुलेमान। में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों का आजमाइशी चेकअप का आगाज़ कर दिया गया है। अस्पताल आने वाले जो मरीज़ हैं उनका जदीद मशीनरी से मुआयना किया गया है। जहां पर आने वाले जो मरीज़ थे उनकी कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और उनका ECG भी यहां पर किया गया है। सरगोदा की आवाम को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है कि इससे पहले जो लोग थे वो यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जाते थे और दिल के अमराज से वाबस्ता जो उनको मसाइल थे वो वहाँ पर अस्पतालों में दाखिल होते थे। उनका कहना था कि रीजन के लाखों अफराद इस नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो यहाँ पर बनाया जा रहा है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो तरक्याती काम है वो तेज़ी के साथ जारी है। 25 दिसंबर 2025 को हतमी डेट दी गई है कि ये तमाम काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो इस वक्त OPD है आज उसका आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़ किया गया था। वो जो बाकायदा इफ्तिताह है वो सितंबर के पहले हफ्ते में। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्ट्रिक की बेहिसी, गर्मी में 16 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। ये इलेक्ट्रिक के जुल्म पर अवाम चीख उठे हैं।
इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने कराची वालों की जिंदगी अचीरन कर दी। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। गर्मी में शहरियों के लिए दिन गुजारना मुश्किल, रात काटना महाल। शहरी तिलमिला उठे। 16-18 घंटे तकरीबन लाइट नहीं होती, और अगर आती भी है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे आती है और उसके बाद गायब हो जाती है, और 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। पेट काट कर भारी भरकम बिल भरते हैं, बिजली फिर भी नहीं आती। अवाम कहाँ जाएं? शहरियों की दुहाइयाँ। बिल इतने भेज रहे, गरीब को कैसे वो बिल भरता, लेकिन लाइट जब भी नहीं है। अहलियान कराची ने मुतालबा किया कि बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाए, कि इलेक्ट्रिक के सुन से निजात दिलाई जाए। कराची के शहरी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने गार्डन चौक को चारों अतराफ से बंद कर दिया है। खवातीन की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक है। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते। साद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 6 से 8 घंटे कबल से यहाँ पर एहतिजाज किया जा रहा है। एहतिजाज में खवातीन भी शरीक हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको बिजली फराहम की जाए। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे कि ये चौक रोड गार्डन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है। इस चौक को चारों अतराफ से ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतिजाज नजर आ रहे हैं, जिनके यही मुतालबात हैं कि इनको जो है वो बिजली, पानी और गैस, इनके बुनियादी हकूक की फराहमी की जाए। ये नहीं दे रहे, हमें बिजली नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं हम। गर्मी में कितना मुश्किल है खवातीन के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप पहले इनसे पूछो कि आप बिल भर रहे हो, आपके पास बिल है? आपके एक घर के अंदर एक आप लोग एक। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो शहरी हैं, तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि हम बिल भर रहे हैं। 75% से जायद यहाँ पर हमारी तरफ से जो है वो बिलिंग की जा रही है, जिसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक 14, 16 और 18 घंटे की लोड शेडिंग करी है, जिसकी वजह से आवाम का जो जीना है वो दोबर हो गया है। आखिरकार परेशान होकर हमारी खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सड़कों पर पिछले तकरीबन 6 से 8 घंटे से यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं। एक ही मुतालबा है। कराची में पानी का बहरान, मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान। मवाज गोट में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नॉर्दर्न बाईपास और हब रिवर रोड आने जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर एक्शन शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई का दायरा कार वसी कर दिया गया। लियारी, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, न्यू कराची और साइट एरिया में इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। कई गैर कानूनी स्टॉल्स और पथारे हटा दिए गए। कमिश्नर कराची की शहर से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का 18 जुलाई से पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। करीम कंपनी के CEO मुदस्सिर शेख ने फैसले को मुश्किल तरीन करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क के खराब मौशी हालात की वजह से ऐसा करना पड़ा। करीम ने 2015 में पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज किया था। PIA का लाहौर से पेरिस की परवाज़ों का आगाज़। 5 साल की मुद्दत के बाद कौमी एयरलाइन ने लाहौर से पेरिस का रूट दोबारा शुरू कर दिया। PIA की पहली हफ्तावार परवाज़ 276 मुसाफिरों को लेकर दोपहर 12 बजे रवाना हुई। इस मौके पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब मुनक्किद हुई और केक काटा गया। मुसाफिरों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खुरम मुश्ताक, फ्रांस एम्बेसी के हेड ऑफ मिशन फ्रैंक ऑब्रे और हवाबाजी के दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी ने ना करते हाँ कर दी। बजट को वोट देने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इत्तेहादियों के बजट पर मुतालिबात मान लिए हैं। सोलर पर GST 18% से कम करके 10% कर दिया गया है। PP रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर बोले, हुकूमत के साथ बजट पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात तकरीबन पूरे हो गए हैं। MQM रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि नीदरलैंड समेत कई ममालिक में 2 कैपिटल्स हैं, आप भी कराची को कमर्शियल कैपिटल करार दे दें। PTI रुकन शेर अली अरबाब ने कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर गलतियों का एतराफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। वो के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड GST थी लगाने की इस बजट के जरिए, ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है, ये जितना था वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे इश्यूज को एक हद तक मिटिगेट कर दिया गया। हम तो चाह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा कंसेशंस मिले, मसलन जो सोलर का 18% लगाया गया था, हम चाहते थे कि कम से कम उसको और भी
जो है कम किया जाए या ख़त्म किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 5% पे रखा जाए। इस्लामाबाद के साथ कराची को भी कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर कर दें। क्या नीदरलैंड में 2 कैपिटल नहीं है? क्या मलेशिया में 2 कैपिटल नहीं है? क्या इसी तरीके से श्रीलंका में 2 कैपिटल नहीं है? ये 2 कैपिटल हो सकते हैं। एक आपका मेजर कैपिटल है, एक आपका कमर्शियल कैपिटल है। तो मैं ये मुतालबा भी करता हूँ, मुल्क ठीक होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनिशिएट थर्ड पार्टी नहीं करेगा। यही सियासतदान आपस में बैठेंगे, पहले ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे कि जी हमने यहाँ जुल्म किया, गलतियां की, और अब हमें आगे जाना चाहिए। की बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल है। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 14 जून को बर्मिंघम में होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। और कराची में बादलों का बसेरा, हवाओं का राज, मौसम खुशगवार हो गया है। कुदरत को कराची वालों पर रहम आ गया है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। ठंडी हवाओं में दरख्त भी झूम रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।